کچھ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہو، اس کے شوہر اس سے خوش رہیں، لیکن کئی دفعہ جانے انجانے میں وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے خوش ہونے کی بجائے الٹا ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی میرج لائف خوشگوار ہونے کی بجائے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں 9 ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے شوہر ان سے خوش رہیں اور ان کی شادی شدہ زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزرے۔ تو دیکھتے ہیں وہ 9 باتیں کون سی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی۔ آپ کے ہسبینڈ آپ سے خوش اور مطمئن رہیں گے۔ ویڈیو کو سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجیے گا، کیونکہ جتنے امپورٹنس اسٹارٹنگ والے پوائنٹس ہیں اتنے ہی لاسٹ والے بھی پوائنٹس بھی امپورٹنٹ ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم مائی یوٹیوب چینل فیملی۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو۔ میرے لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے جو 9 کام آپ نے نہیں کرنے، ان میں سے فرسٹ نمبر پر ہے اسٹاپ گوئنگ پرائیورٹی ٹو، یعنی اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کسی اور کو پرائیورٹی دینا بند کر دیں۔ مطلب ٹاپ پرائیورٹی آپ کے میاں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے رشتہ دار، کوئی فرینڈ سرکل یا کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو اس کو پرائیورٹی نہیں دینی چاہیے۔ آپ کے شوہر ہونے چاہیے سب سے پہلے۔ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ اگر آپ نے کسی کو امپورٹنس دینی ہے تو ان لوگوں کو دینی ہے جن کو آپ کے ہسبینڈ بہت اہمیت دیتے ہیں، جن کی وہ بہت کیئر کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے ہسبینڈ اپنے ماں باپ کی بہت کیئر کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ان کے ماں باپ کے ساتھ اہمیت دیں گے، ان کے کیئر کر دیں گے تو آف کورس وہ آپ کے شوہر آپ سے خوش ہوں گے، انہیں خوشی ملے گی۔ تو اپنے شوہر کو پرائیورٹائز کرائیں، بچوں سے بھی زیادہ پرائیورٹی اپنے ہسبینڈ کو دیں۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگ رہی ہے، لیکن دیکھیں شادی کے بعد جب ایک وائف ماں بن جاتی ہے نا تو اپنے بیوی والا رول، ذمہ داریاں تھوڑی سی نیگلیکٹ کرنے لگتی ہے، اس کا پورا فوکس مدد والے رول پر چلا جاتا ہے۔ مجھے یہ والا رول پوری اچھی طرح نبھانا ہے۔ لیکن اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو پوری امپورٹنس دے گی، اسے پرائیورٹی دے گی، اسے توجہ دے گی تو آف کورس اس کے شوہر اس سے خوش رہیں گے۔ شوہر خوش ہوں گے تو بیوی خوش ہوگی، میاں بیوی خوش ہوں گے تو سارا خاندان خوش رہے گا۔ اور جب سارا خاندان خوش ہوتا ہے نا تو یقین کریں یہ بات 100% صحیح ہے۔ خوش رہنے والا خاندان بچوں کے لیے ایک بلیسنگ ہوتا ہے۔ خوشگوار خوشحال رہنے والا خاندان بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ بچے اپنے گھر کے اس خوشگوار اور ماحول کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے لڑتے رہنا، ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کو طنز تانے دیتے رہتے ہیں، پرانی باتیں یاد کر کے لڑتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بچوں کے لیے قرض ہے۔ اگر ماں باپ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، مل کر رہ رہے ہیں، بچوں کے لیے مثال بن رہے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھیں، انہیں امپورٹنس دے تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا جائے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ، یعنی اپنے ہسبینڈ کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خواتین اپنے ہسبینڈ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، انہیں بات پر ڈانٹتی ہیں، یا یہ کر دیا، یا ایسے کیوں کر دیا، وہاں کیوں اتنا ٹائم لگا دیا، یہ کام ٹائم پر نہیں کیا، فلاں کام خراب کر دیا۔ یہ آپ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ ماں والا رول نا اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کرتی ہیں اور ہر بات پر ایسے ہی کرنا برا لگتا ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو مدر والا رول نہیں، وائف والا رول دکھائیے، وائف والے ٹریٹ کریے، ٹھیک ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا پوائنٹ نمبر 3، اپنے ہسبینڈ کی صلاح، ان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی امپورٹنٹ فیصلہ لینا بند کر دیں۔ کئی دفعہ عورتیں اپنے ہسبینڈ کی ویلیو کو نہیں سمجھتی اور ان سے پوچھتی بھی نہیں، بتائے بغیر کوئی فیصلہ لے لیتی ہیں۔ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہوگا، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے آپ کے میرے ہسبینڈ کو کیا پتا ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کمیٹی ڈالنی ہے، BC ڈالنی ہے اور آپ نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیے بغیر ہی اس کی حامی بھر لی۔ ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہر مہینے اتنی اماؤنٹ ارینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے، تو اس لیے ہمیشہ پوچھ کر ہی ڈیسیزن لیں۔ اس طرح اگر آپ
पेरेंट्स के घर जा रही हैं, आपने ट्रेन, जहाज या फिर बस वगैरह की बुकिंग करवाई हुई है और आप बाद में अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर रही हैं कि मैं 2 दिन के लिए अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मैंने टिकट करवा ली है। तो ये सब अच्छा नहीं लगता। आपके इन टॉक्सिक के एकेट से आपके हस्बैंड आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपने आप को डी वैल्यू लगेगा। उनको ये फील होगा कि मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि ये मुझसे पूछ के कोई डिसीजन ले। तो अपने हस्बैंड को थोड़ा वैल्यू करें। जब आप छोटे छोटे डिसीजंस उनसे पूछ कर करेंगी ना, तो उनको अच्छा लगेगा। आपको आपस में संबंध, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा, भरोसा कायम होगा। हाँ, ये हर काम मुझसे पूछ कर करती है, ये मेरी राय, मेरी इजाज़त चाहती है। आपके शौहर को एक इंटरनल खुशी मिलेगी। हम एक दूसरे को इतना समझते हैं, सब कुछ हम एक दूसरे से पूछ कर करते हैं, बता कर करते हैं। अगर आप इसे इसका अपोजिट करती हैं, यानी अपने किसी फैसले में अपने हस्बैंड को शामिल नहीं होने देती, तो उनका दिल टूट जाता है। फोर्थ पॉइंट, यानी दूसरों के सामने, अपने रिश्तेदारों या अपने बहन भाइयों के सामने अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाना, उनकी बुराई करना या उनकी किसी भी बुरी आदत को डिस्कस करना बंद कर दें। अक्सर ख्वातीन अपने शौहरों से काफ़ी शिकायत रहती है, उनकी आदत को की वजह से, उनके लक्ष्य की वजह से, उनके काम की वजह से। देखें, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। आपके हस्बैंड परफेक्ट हैं, ना आप खुद परफेक्ट हो सकती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ, कुछ न कुछ होती ही हैं, जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जिनके साथ आप अपने हस्बैंड को कंपेयर कर रही होती है ना, वो खुद भी परफेक्ट नहीं होते। हर इंसान के अंदर ही कुछ न कुछ ज़रूर होता है। तो इस तरह अपने हस्बैंड को मजाक उड़ाना या उनके दूसरे के सामने बुराई करना बंद कर दें। ये जो आप कर रही हैं ना, उनके एक अगर आपको ये लगता है ना कि मैं तो अपने शौहर की कोई भी बुराई नहीं करती, उनका किसी के सामने मजाक नहीं उड़ाती, हमारे फलां एक रिश्तेदार हैं या मेरे एक फलां फ्रेंड है जो मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाती हैं, उनकी कोई बुराई करती हैं या उनके किसी काम या उनकी किसी आदत को बुरा कहती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आपने उठना बैठना बंद कर दें। क्योंकि आप ये सुन भी कैसे रही हैं, कोई आपके हस्बैंड की बुराई कर रहा है और आपको सुन रही हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, उनसे कोई मेल जोल न रखें। आपके लिए सबसे पहले आपके हस्बैंड होने चाहिए। अपने शौहर की रिस्पेक्ट दें, उनके पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स पर फोकस करें, निगेटिव पॉइंट्स को निगलेक्ट करें। जैसे कुछ दिन पहले है ना, मेरी एक दोस्त बता रही थी, मेरी सहेली बता रही थी कि उसके सर में दर्द था, तो उसके हस्बैंड ने उसे टैबलेट ला कर दी, उसके लिए चाय भी बनाई और उसे रेस्ट करने को कहा। और जब वो ऑफिस चले गए तो वहाँ भी पूछते रहे, अब तबीयत कैसी है। तो इस तरह अपने हस्बैंड के पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएं, उनको खुद भी याद करें और अपने हस्बैंड को भी बताएं कि आपने फला टाइम पर मेरा कितना ख्याल रखा था। यकीन करें, जब आप अपने हस्बैंड को इनकी अच्छी बातें, आदतें, उनको कोई अच्छा काम बताती हैं ना, तो वो खुश होकर उसे और इम्प्रूव करते हैं, उस काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड की कोई बुरी बात या बुरी आदत हर अरे गरे के साथ डिस्कस नहीं करनी। फिफ्थ पॉइंट, यानी अपने शौहर को अवॉइड करना, उनसे दूर दूर रहना बंद कर दें। अक्सर हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं या घर पर फ्री होते हैं तो कहते हैं चलो मिलकर बातें करते, लेकिन औरतों के पास टाइम नहीं होता, वो उनको अवॉइड करने लगती हैं। मुझे तो किचन में काम है, मुझे फला काम है, डिफरेंट किस्म के एक्सरसाइज करना डिफरेंट किस्म के बहाने बनाकर उड़ जाती है। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अभी तो बैठने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कपड़े धोने बहाना बनाकर उड़ जाती हैं। अगर आपके पास बैठ भी जाती हैं तो कोई कंडीशन या डिमांड रख देती है। तो देखें, मियाँ बीवी का प्यार एक बेलौस है, बेगर्ज मोहब्बत होती है। असल मोहब्बत वही होती है जहाँ पर कोई कंडीशन ना हो। मेरा ये काम होगा तो मैं आपका काम करूंगी। इस तरह से अगर आप करेंगी ना, तो आपके अज़दवाजी ज़िंदगी का एक स्पार्क, एक चांस ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ अपने आप को भी अच्छा रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने शौहर के सामने खुद को खुशगवार बनाएं। अगर सारा दिन घर के कामों की वजह से आपका बदन थका रहता है, तो अपनी सेहत पर तवज्जो दें। सिर्फ अपने ही आप ही हैं जो अपना ख्याल भरपूर तरीके से रख सकती हैं। कोई आपका ख्याल रखने बाहर से नहीं आएगा। आपके मियाँ या बच्चे कोई कब तक आपका ख्याल करेगा। सो अपना ख्याल खुद रखें, दूसरों के सहारे ढूंढना बंद कर दें। अपनी जिंदगी मैदान में अपनी मदद आप करें। सिक्स पॉइंट, यानी हर वो काम जो करना बंद कर दें जिससे आपके शौहर के दिल में आपके लिए शक पैदा हो। अपने शौहर के साथ हमेशा उन पर भरोसा कायम करें, रखें। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा फ्लर्ट हो रहे हैं,
ज़्यादातर तादाद उनमें मर्दों की होती है, लेकिन औरतें भी उस चीज़ में इन्वॉल्व पाई जाती हैं। अक्सर ख़वातीन को भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों पर चैटिंग हो ही रही होती है। फोकस फिक्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही होती हैं। अक्सर लोग कॉल पर तो बात करते ही करते हैं, चैटिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन घर से बाहर भी मिलने चाहते हैं। और अपने हस्बैंड से छिपकर ये सब कुछ करना कितना अकॉर्ड और कितना बुरा लगता है। एक बंदे ने आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है और आप सारी जिंदगी आपके नाम की हुई है, लेकिन आप उसे इस तरह से बेवफाई कर रही हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। मैं यहाँ सब खातन को नहीं कह रही हूँ, बहुत ही कम तादाद ऐसी खातन की होती हैं जो सब कुछ कर रही होती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना। खुल्लम खुल्ला एक झूठ है, बेवफाई है, डिसलाइटी है, बिल्कुल एक गलत काम है। और जब आपके हस्बैंड को इन मामलात का जरा से भी पता चलता है ना, तो आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं और दिल में शक पैदा हो जाता है और भरोसा टूटने लगता है। और रिश्ता तो होता ही है भरोसे का, तो आप खुद भी हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें, और ताकि आपके बार बार झूठ न बोलना पड़े, अपने बारे में सफाइयाँ न देनी पड़े। अगर आप अल्लाह न करे इस गलत काम में उलझ गई हैं, तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ही गलत है। देखिए, अगर दीवार में दरार पड़ आती है तो दीवार गिर जाती है, और अगर रिश्ते में दरार आ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ऑफ कोर्स कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में दीवार खड़ी हो जाए, तो अपने रिश्ते को साथ साथ हमेशा बरकरार रखें और खुशगवार बनाएं। सेवन पॉइंट, यानी अपने हस्बैंड को हर वक्त डोमिनेट करना बंद कर दे। उनके सर पे बॉस बनकर रहना, जैसे बॉस होता है ना कि मैं बॉस हूँ, मेरे सुनो, मैं तो अपने ही चलाऊंगा, मैं ही सही हूँ, यानी हर एक किस्म की अपने शौहर पर हुक्मरानी करना, मैं जो चाहती हूँ वही होना चाहिए, मैं ही हक पर हूँ। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके शौहर आपके बॉस बिहेवियर झाड़ रहे हों, तो आपको बुरा लगेगा। तो इस तरह अगर आप उन पर बॉस बनकर अपनी हुक्मरानी चलाती हैं, तो उनको भी बुरा लगता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप हर वक्त अपनी ही मनमानी करती रहें या अपने ही घर में चलाती रहें। इस तरह अक्सर ऐसा भी होता है, जब ख्वातीन से खुद गलती होती है तो उसे फील नहीं करती, और अगर शौहर से गलती हो जाए तो उसे कहती हैं कि सॉरी बोलो। जब तक आप सॉरी नहीं कहोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये घर के काम नहीं करूंगी, या खाना नहीं खाऊंगी। कभी कभार इस तरह का रोडमेन वाला भी बिहेवियर चलता है, लेकिन हर वक्त अगर आपकी यही प्रैक्टिस है तो ये बहुत अबोर्ड लगता है। तो इस तरह की चीज़ें कि बस अपनी ही बातें मनवाना, मियाँ पर हावी हो जाना, काम के लिस्ट दे दें कि उन कामों को बुरा लगा देना, उनको कामों पर लगा देना, ये उनको एक स्ट्रेस देने के बराबर है। उन पर आप कामों के बांट लें या प्राइवेटी वाइज काम कर लें, मिलकर कर लें, जिससे आपके काम आसान हो जाए और अपने हस्बैंड को आप का साथ दें। और हाँ, अगर आपके हस्बैंड से कभी कोई गलती हो जाए तो आप उनको माफ़ करना सीखें, उनको माफ़ कर दें। बहुत अच्छी आदत है माफ़ करना। मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ इस तरह से आसान कर ली, कभी माफ़ कर दिया, कभी माफ़ी मांग ली। तो माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेना ये कोई बड़े इश्यूज नहीं है, उनको इशू बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये इश्यूज नहीं है। पॉइंट्स नंबर 8, आपके हस्बैंड जो वो काम ऑलरेडी हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो काफ़ी होते हैं, लेकिन हम उनसे एक्स्ट्रा काम लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे हस्बैंड ऑफिस या काम से आकर मेरा ये भी काम करें, मेरा वो काम भी करें, बच्चों के भी कुछ काम होते हैं, घर के काम रखे होते हैं, मुझे फला जगह लेकर जाए, मेरी जिम्मेदारी करें। एक्स्ट्रा तो थोड़ी अपने हस्बैंड को स्पेस दें, उन्हें सांस लेने का मौका दें, थोड़ी टाइम दें, उनसे एक्स्ट्रा उम्मीदें ना रखें। इस तरह कई दफ़ा हमने अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल किस्म की उम्मीदें भी रखी हुई होती हैं। मुझे गोल्ड का सेट लेकर दें, मुझे किसी अच्छी जगह लेकर जाएं, मुझे कोई लग्जरियस रेस्टोरेंट लेके जाएं वगैरह। तो हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपने हस्बैंड के साथ उम्मीदें लगाएं। ये नहीं कि आप किसी रिश्तेदारों में या आपके किसी फ्रेंड ने कोई गाड़ी या बंगला या घर, छोटा मोटा या कोई भी अच्छी चीज़ ले ली है, तो आप भी अपने शौहर से ही वही डिमांड करना शुरू कर दें। देखें, उनकी माली हालात ऐसे हैं, उन्होंने वो ले लिया, लेकिन आपके जैसे हालात हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। तो ना तो आपने हस्बैंड को स्ट्रेस दें और ना खुद इस किस्म के डिसीजन को पालें। अल्लाह ताला ने जो भी आपके नसीब में लिखा हुआ है वो इंशाल्लाह आपको देर से सही लेकिन मिलकर ज़रूर रहेगा। पॉइंट्स नंबर 9,
मूड अपने शौहर के सामने निगेटिव मूड में रहना बंद कर दें। हर वक्त माथे पर बल रहते हैं, शिकायतें मूड रहता है, मुंह बना रहता है। ख्वातीन खुद को भी कोसती हैं, घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी कोसती रहती हैं। कभी एक दूसरे को ताने मारती हैं, मियाँ को बस खुश नहीं रहने देती। अगर उनके शौहर का मूड अच्छा भी होता है, वो बेचारे बड़े पॉजिटिव मूड में होते हैं, तो कोई गलत किस्म की बातें, कोई खानदानी सियासत छेड़कर उनका मूड खराब कर देती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके हमेशा अपने स्माइलिंग फेस बनाकर रखें। अपने शौहर के सामने आप क्यों परेशान रहती हैं? आप परेशान रहेंगे तो आपके हस्बैंड भी परेशान रहेंगे और आपके ताल्लुकात खराब होंगे। सो नेगेटिव मूड से निकलकर एकदम पॉजिटिव हो जाएं और स्माइलिंग फेस बनाएं और 9 पॉइंट्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा और आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगी। आपकी लाइफ खुशगवार हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो और क्योंकि अल्लाह ताला को ये 2 जोड़े ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि दुनिया से लेके आखिरत तक, मरने तक, जन्नत और जहन्नम में दोनों साथ ही रहेंगे। अगर अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब किया तो ये दोनों जोड़ा सलामत रहेगा। तो इन जोड़ों को यहाँ से भी खुशगवार बनाइए, दुनिया से लेके आखिरत तक, कि दोनों एक दूसरे के लिए तड़पो, दूसरे एक दूसरे के लिए मोहब्बत में जी जान लगा दो, क्योंकि बुढ़ापे में भी शौहर तुम्हारे काम आने वाला है और बीवी शौहर के काम आने वाले। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करो, दोनों एक दूसरे की इज्जत करो, दोनों को वैल्यू एक दूसरे के दो और एक दूसरे की अहमियत को समझो। अगर ये अहमियत, अगर ये शौहर जो एक सहारा अगर ये चला गया आपके हाथ से ना, तो कोई नहीं होगा आपका, ना मायका होगा ना ही ससुराल होगा। वो एक शौहर जो है जो तुमको दोनों जगह इज्जत देता है, मायके में भी और ससुराल में भी। क्योंकि आपने बहुत सारे वाकयात भी सुने होंगे, देखे होंगे, जिनका तलाक हो जाता है तो कितने निगेटिव लोग बातें बोलते हैं, कितना उल्टा सीधा कहते हैं। तो इस शौहर की शुक्रिया मानो कि अल्लाह ताला ने हमें औरत के नाम से कितनी इज्जत बख्शी है, कितना अहमियत दिया है। तो हम थोड़ी सी अपने आप को तकलीफ देकर उनको खुश करने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो अगर कोई भी एक पॉइंट्स भी आपने पसंद किया हो या आपने कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि ऐसे ही आपको इन वीडियोस